السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل کورس سورہ الانشقاق۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 1 سے 8 تک تلاوت اور تجوید کریں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا۔ یہ تھی اس کی تلاوت۔ اب ہم اس کے قاعدے کر لیتے ہیں تجوید کے۔ پہلا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں، نون میم مشدہ، نون میم ایسی نون اور میم جس پہ تشدید ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 6 میں انکا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 6 میں انکا، اور آیت نمبر 7 میں فاما، تو ان کو ہم نے اچھی طرح سے غنہ دے کر پڑھنا ہے۔ دوسرا رول ہم دیکھیں گے قلقلہ۔ قلقلہ کا صرف ایک ہی حرف آیا ہے اس میں، اور وہ ہے آیت نمبر 6 میں قدحن۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں قلقلہ میں کہ جو قطب جدیں قاف تا با جیم دال ہیں، جو بھی یہ حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جدین ہے، جب ان میں سے کوئی حرف ساکن ہو یا ہم اس کو رک کے ساکن کریں وقف کر کے، تو ہم اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھتے ہیں اور اس کو تھوڑا اس میں ایکو کی آواز آتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ قدحن قدحن۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں را پر اور باریک۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں آیت نمبر 2 میں ہے لیربیہا، را پہ فتحہ ہے تو یہ موٹی پڑھی جائے گی، را را لیربیہا۔ اور الارض، را یہ ہیوی پڑھی جائے گی، مفخم پڑھی جائے گی، موٹی پڑھی جائے گی، پر پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ را تو ہے تو ساکن، لیکن اس سے پہلا حرف دیکھیں گے تو اس پہ فتحہ ہے، تو فتحہ ہے تو ہم را کو پر پڑھ دیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، اور پھر آیت نمبر 5 میں لِرَبِّهَا، را ہیوی ہوگی، بھاری ہوگی، مفخم ہوگی کیونکہ اس پہ فتحہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں رَبِّكَ، را مفخم ہے، پر ہے کیونکہ اس پہ فتحہ ہے۔ اور آیت نمبر 8 یسیرا، را پہ جو ہے وہ فتحہ تین ہے تو یہ را موٹی پڑھی جائے گی، یسیرا۔ حروف مستعلیہ، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، اور خص، ضغط، قید، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ کون کون سے خص، ضغط، قید میں سے کون کون سے یہاں پر آئے ہیں۔ تو یہاں پر قاف ہے، دیکھیے قیس، قاف دیکھیں قاف ہے اس میں، اور ضاد ہے، دیکھیں ضاد ہے، اور پھر اس میں خا ہے، خصہ خا، اور اس میں قاف، اور بس یہاں خص، ضغط، قید میں سے اتنے ہی اس میں آئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں، دیکھیے اذا السماء انشقت، قط، قا، قا، حقت،
अल अर्दु दो 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 व अलकत इसको अलकत नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको जो है अंशक़त कत नहीं पढ़ेंगे, इसको भी कत नहीं होगा, या कत ता लाइट है लेकिन कॉफ हैवी है। वतखल्लत वहुक्कत, और यहाँ पे देखिए फमुलाकी, इसमें क्योंकि ज़ेर है, कसरा है, तो ये इतनी भारी तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको भारी तरीके से ही। तो आगे देखते हैं हम नून साकिन और तनवीन के कायदे। तो उसमें से हम देखेंगे पहला कायदा इदगाम। यरमलून में से कोई भी एक हर्फ जब नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाता है तो हम इदगाम करते हैं, नून साकिना को उससे मिला देते हैं। यहाँ पर या है तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे, हिसाबन यसीरा, दो काउंट गुन्ना करते हुए हम यहाँ पर जो है वो तनवीन को या से मिला देंगे, और ये कहलाता है इदगाम बिगुन्ना नाकस। हिसाबन बई, दो काउंट इस पे हम गुन्ना करेंगे। और देखिए अभी आ गया इजहार, दूसरा जो इसका जो है कायदा इजहार। हरूफ हलकी में से कोई भी हर्फ अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाता है तो वहां पर हम नून को साफ पढ़ देते हैं, क्लियर पढ़ देते हैं, लेकिन खींच के गुन्ना नहीं करते, बस उतना गुन्ना होगा जितना कि उसकी तबीयत में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयत नंबर 6, कादिहुन इला, हुन इला, हुन, इसको हुन इला नहीं पढ़ेंगे, कादिहुन इला। और ये मन ऊतिया, मन बस इतना। और फिर देखते हैं हम इक़लाब, तो इसमें नहीं है, तो आगे कायदा है इख्फा का। तो इख्फा में हम देखते हैं जहाँ पर हमने नून को छुपा के पढ़ना है और दो काउंट गुन्ना करते हुए नून साकिना से उसके अगले वाले हर्फ पर चले जाना है। यहाँ देखिए, इज़ा समा शक्कत। और यहाँ पर देखें आयत नंबर 6, कदहन 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 हंफ हंफ, फा के मखरिज पे हम गुन्ना करते हुए चले जाएंगे। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अल इंसानु, या अय्युहल इंसानु, तो यहाँ दो काउंट गुन्ना करते हुए हम नून को छुपाएंगे, खुफिया रखेंगे और उससे अगले वाले हर्फ पे चले जाएंगे नून साकिना से। अब देखते हैं हम मद वासिल, मद वाजिब मुत्तसिल या मद मुत्तसिल वाजिब। ऐसी मद, असली मद जिसके बाद हमजा आए वो मद असली से मद फरई बन जाती है और वो मद मुत्तसिल वाजिब बनती है, या वो मद मुनफसिल जाइज बनती है हमजा की वजह से। अगर एक लफ्ज में होगी, एक कलिमा में होगी, तो वो क्या कहलाएगी, मद मुत्तसिल वाजिब। और अगर वो दो कलिमा में, जैसे यहाँ देखिए या अय्युहा, ये दो कलिमा है लेकिन लिखा जो है वो एक ही जाता है। जैसे देखें, या एक लफ्ज है और अय्युहा एक लफ्ज है, लेकिन मुसहफ की जो खताती है उसके लिहाज से यहाँ एक साथ लिखा जाता है। तो ये है, यहाँ पर देखिए ये मद मुत्तसिल है, जो हमजा है वो माँ पहले मद थी, हमजा के उसके बाद आ गया, तो ये मद 4 काउंट, 4 से 5 काउंट हो गई। और यह एक एक लफ्ज था और उसके बाद अय्युहा आया, तो ये मद मुनफसिल जाइज, मद मुनफसिल जाइज। तो अब ये देखें, हम इसको 4 से 5 काउंट खींचेंगे। इज़ा समाउ शक्कत। और यहाँ देखिए आयत नंबर 6 में, या
अय्युहा। लीन हरूफ, लीन हरूफ अगर हम इसमें देखें तो हमें जो है कोई इसमें नजर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर लीन हरूफ को जो है वो नहीं पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम्स हवा वाले हरूफ। तो ये देखिए बहुत सारे हैं जिनको हमने हवा, छोटी सी हवा के साथ पढ़ना है। ये देखिए जब हम उस स्पेशली जो हम्स वाले लेटर्स हैं वो हैं फहस्सहु शख्सुन सकत, जैसे फहा सा शीन ख सौद सीन कफ ता, तो इनका मजमुआ बना के उन्होंने फहस्सहु शख्सुन सकत ये बना दिया ताकि हम इसे आसानी से याद कर सकें। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो ता है वो तकरीबन पहले 4-5 जो आयात हैं उनमें आया है, 5 आयतों में। तो उनमें हमने ये मेक श्योर करना है कि जब हम आयत का एंड करें ताक साकिन पे तो उसके बाद एक हवा जो है उसके साथ निकालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं कि वो था हो जाए या उसमें हा शामिल हो जाए, बल्कि बहुत ही साफ क्लियर छोटी सी हवा जो ताक इसकी सिफ्त है वो हमें डालनी पड़ेगी। إذا السماء انشقت، بس وأذنت، وأذنت ऐसे नहीं पढ़ना, वअذनत ऐसे नहीं, ऐसे वहुक्कत। अब देखें इसमें आयत नंबर 3 कहाँ एंड होती है, मुद्दत, वअल्क़त, वतख़ल्लत, वअذनत, वहुक्कत। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे है मद आरिद लिस्सुकून, और वो यहाँ पर एक ही है। जब हम किसी आयत पे रुकते हैं एंड में या कहीं बीच में हम रुकते हैं और जिस हर्फ पे हम रुकते हैं उसको साकिन करते हैं, अगर उससे पहले वाला जो हर्फ है वो अलिफ वाव या जो मद हरूफ में से है कोई एक होता है, तो वो जो मद है उसको हम मद आरिद लिस्सुकून कहते हैं और वो 2, 4 या 6 काउंट तक खींचा जाता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, फमुलाक़ी। यहाँ पर 2 काउंट होंगे तो कैसे होगा, फमुलाक़ी। और अगर 4 काउंट हुआ, फमुलाक़ी। और 6 हुआ तो फमुलाक़ी। तो आपने जो भी काउंट जो है वो चूज करना है 2, 4 या 6 में से, तो आपने अपनी थ्रू आउट जितनी भी तिलावत है उसमें वही काउंट रखना है। ये नहीं कि कहीं आप 2 कर दें, कहीं 4 कर दें, कहीं 6, ऐसे नहीं। 2 काउंट तो 2 काउंट पे ही आप अपनी तिलावत खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे मद्दे सिला सोरा। अगर हा की जमीर जब आए और उससे पहले और बाद में मुतहरिक हर्फ हो तो वो मद्दे सिला सोगरा कहलाती है। जैसे यहाँ पर है देखें आयत नंबर 7, किताबहू, उसको खींचा जाता है 2 काउंट, किताबहू, किताबहू बियमीनी। अब यहाँ आप देखें तो यहाँ भी छोटी सी मद जो है वो सिला सुगरा है, क्योंकि मद सिला सुगरा को छोटे वाव और छोटे या से लिखा जाता है। यहाँ पर हम क्योंकि रुक रहे हैं तो यहाँ पर हम फिर मद सिला सुगरा को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हम हा को साकिन करके ही रुकेंगे, बियमीनी। लेकिन अगर हमने कंटिन्यू किया, वसलन पढ़ा, तो फिर हम जो है वो मद सिला सुगरा को साथ में पढ़ेंगे 2 काउंट, बियमीनिही फसौफा। ठीक, तो ये थे हमारे आज के कायदे।
اور اس کے ساتھ ہمارا لیسن جو ہے سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں آپ کو جگہ جگہ ویڈیو میں اپنے ویڈیوز کے لنک دوں گی، آپ ان پہ جائیے، ایک ایک کر کے انہیں دیکھیے، جو بھی ویڈیو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تلاوت کو امپروو کر سکتا ہے تو پلیز آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی تلاوت کو صحیح کیجیے بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔